Hello students, myself Kritika Verma. I'm your NEET Biology faculty. This is the fifth lecture of chapter Morphology of Flowering Plants, in which we will study about fruits and seeds in detail. Let's start our topic, the fruit. As we all know, flower is a reproductive structure. It plays a role in sexual reproduction. Now, what is sexual reproduction? The type of reproduction in which two parents are involved, male and female. It is known as sexual reproduction. So, flower also has male part and female part. Male part of flower is known as androecium. Female part of flower is known as gynoecium. Androecium consists of stamen, gynoecium consists of carpel. In case of sexual reproduction, there is a formation of male gamete and female gamete. The formation of male gametes takes place inside the anther, which is a part of a stamen. And the formation of female gametes takes place inside the ovule, which is again placed inside ovary. So after the formation of male gamete and female gamete, there will be the fission of male gamete and female gamete, which results in the formation of zygote. This process is known as fertilization. The fusion of male gamete and female gamete is known as fertilization. So after fertilization, the ovary of a flower gets developed into fruit, and the ovule, which is present inside the ovary, gets developed into seed. Let's see the life cycle of a flowering plant or angiospermic plant. Then we will discuss about the fruit. See, here it is a life cycle of pea plant. Firstly, we sow the pea seeds. Pea seed को हमने sow किया first number पे. After that, it will start germinating. There is a formation of radicle, which develops into root. Then there is a formation of plumule also, which develops into shoot. Plumule. सीडलिंग का फॉर्मेशन हुआ नेक्स्ट नंबर पे. प्लांट ग्रो किया. ग्रो करने के बाद पूरी तरह से जब ये डेवलप हो गया, देन इट बियर्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नोन एज फ्लावर्स. प्लांट पे आपका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आ गया, फ्लावर आ गया. फ्लावर कंसिस्ट ऑफ मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट. जो मेन पार्ट है आपके फ्लावर के. So there is a formation of gametes inside the male part as well inside the female part. After that, pollination takes place with the help of pollinating agents. They may be abiotic agents, that means the agents which do not have life like water and wind, and biotic agent, the agent which has life like insects, birds. So pollination means the transfer of pollen from anther to the stigma of a flower. It is known as pollination. After pollination, there will be the next step, that is fertilization. Fertilization of male and female gamete. आप लिख देते हैं. Pollination के बाद आपका क्या होगा? Fertilization होगा. Fertilization of male gamete and female gamete, which takes place inside the ovule. Ovule में होता है. यहाँ पे लिख देते हैं, देख लीजिए डायग्राम के थ्रू. Here it is ovary. Inside this ovary, ovule is there. Ovule. This is ovule. Inside this ovule, one more structure is there, which we'll study in class 12. This is known as embryo sac. And inside this embryo sac, female gamete is present. Female gamete. So here, ovary. This is ovule. This part is ovule. Inside this ovule, embryo sac is present, which contains, embryo sac is present, which contains female gamete. So जो आपका मेल गैमीट है, पॉलिनेशन के बाद जो पॉलन ग्रेन्स के अंदर प्रेजेंट होता है, वो आपका इस फीमेल गैमीट तक आएगा, यहाँ तक आएगा, फीमेल गैमीट तक. यहाँ पे आगे फर्टिलाइज कर जाएगा. तो फर्टिलाइजेशन होगा. किसका हो रहा है? मेल गैमीट and female gamete. This result in the formation of zygote. So after fertilization,
आफ्टर फर्टिलाइजेशन दिस ओवरी गेट्स डेवलप इनटू फ्रूट। ये जो ओवरी है ये फ्रूट में डेवलप हो जाती है, फ्रूट में, एंड दिस ओव्यूल गेट्स डेवलप इनटू सीड। जो ये ओव्यूल है ये आपका सीड में डेवलप हो जाता है। तो क्योंकि हम लोग यहाँ पे पी प्लांट की लाइफ साइकिल देख रहे थे, तो फर्टिलाइजेशन हो गया। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओवरी थी वो पी की पॉड में चेंज हो गई, दैट पी पॉड इज अ फ्रूट। ये पी पॉड में आपके देखिए जहाँ जहाँ फ्लावर्स लगे थे वहाँ पे पी पॉड का फॉर्मेशन हो गया। ये ओवरी ही डेवलप हुई है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और इसके अंदर पी के अंदर जो ये आपके सीड्स हैं ये ओव्यूल्स थे। ये ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन किसमें डेवलप हो गया, सीड में। अगेन फिर ये सीड की नेक्स्ट लाइफ साइकिल स्टार्ट हो गई है। तो मेन काम क्या था फ्लावर का, रिप्रोडक्शन, नई जनरेशन को लाना। और वो नई जनरेशन किसके फॉर्म में है, सीड के। तो जो प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है वो फ्रूट नहीं है, सीड है। और सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पे जो ओवरी थी वो डेवलप हो गई है, वो फ्रूट में डेवलप हो गई, वो हमारे लिए तो काम आ रहा है, लेकिन प्लांट को नई जनरेशन के लिए उनके लिए यूजफुल क्या है, सीड है। नाउ लेट्स कम टू आवर टॉपिक द फ्रूट। क्योंकि हम लोग को फ्रूट पढ़ना है इस टॉपिक में, तो हमें पता होना चाहिए कि फ्रूट के कौन सा पार्ट था फ्लावर का। ओवरी ही डेवलप हो रही थी आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट में। फ्रूट इज अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट का ये करेक्टरिस्टिक फीचर है। दोज प्लांट्स विच बियर फ्लावर एंजियोस्पर्मिक प्लांट, उनको हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं। और वहां पे फ्रूट्स आता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। इट इज अ मैच्योर और राइपेंड ओवरी। यही अभी पढ़ा था, फ्रूट ही आपका जो ओवरी थी, सॉरी जो ओवरी थी फर्टिलाइजेशन के बाद वही आपकी क्या हो गई है, मैच्योर हो गई है, राइपेंड हो गई है, विच डेवलप्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यही कंटेंट लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। इट if a fruit is formed without fertilization, in some cases there is a formation of fruit without fertilization, the ovary start develop into fruit without the fusion of male and female gamete. That type of fruit is known as पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। उस फ्रूट को हम लोग पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलेंगे। और उससे नेक्स्ट जनरेशन नहीं आ सकती क्योंकि उसके अंदर सीड्स है ही नहीं। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के अंदर जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो तो ओव्यूल कैसे आपका सीड में डेवलप होंगे। तो फ्रूट तो डेवलप हो गया लेकिन वहां पे सीड्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो वो आपके स्ट्राइल फ्रूट होते हैं, उससे नई जनरेशन नहीं आ सकती। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट आपको समझ में आ गए होंगे। दोज फ्रूट्स विच डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट, जनरली द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ वॉल और पेरिकार्प एंड सीड। जो फ्रूट होता है उसमें जो वॉल प्रेजेंट होती है या पेरिकार्प आप बोल सकते हो उसको, एंड सीड। फ्रूट में दो चीजें हैं, पेरिकार्प एंड सीड। पेरिकार्प अगेन इसके तीन पार्ट हैं। आउटर मोस्ट पार्ट इज नोन एज एपिकार्प, मिडिल वन इज नोन एज मीजोकार्प, एंड इनर मोस्ट इज नोन एज एंडोकार्प। आफ्टर दैट सीड इज प्रेजेंट। सीड्स हैव एम्ब्रियो which develops into new plant. सीड के पास ही आपका, सीड के अंदर ही एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है जो कि आपका न्यू प्लांट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट। नेक्स्ट, द पेरिकार्प मे बी ड्राई और फ्लैशी। पेरिकार्प ड्राई भी हो सकती है और फ्लैशी भी हो सकती है। लाइक इन केस ऑफ नट्स द पेरिकार्प इज ड्राई, इन केस ऑफ मैंगो द पेरिकार्प इज फ्लैशी। व्हेन पेरिकार्प इज थिक एंड फ्लैशी, जब आपका पेरिकार्प जो आपकी कवरिंग है, जो ओवरी की वॉल थी, वही आपका डेवलप होती है पेरिकार्प में। सो जब आपका ये पेरिकार्प थिक एंड फ्लैशी होगा, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर एपिकार्प, मिडल मेसोकार्प, and the inner one is known as endocarp. See in this diagram, here is the structure of a mango and a coconut. Pericarp का outermost part, epicarp. Pericarp की तीन लेयर, epicarp आपका क्या है, बिल्कुल जो मैंगो का आपका बाहर वाला जो आउटर छिक्कल है, पील है, उसको हम लोग एपिकार्प बोलते हैं। जो फ्लैशी पार्ट है, जो एडिबल पार्ट है मैंगो का, जिसको हम लोग खाते हैं, दैट इज मीजोकार्प। एंड द इनर मोस्ट पार्ट जो आपका सीड की वॉल से अटैच्ड है, स्टोनी पार्ट, इट इज एंडोकार्प। सिमिलरली इन केस ऑफ कोकोनट ऑल्सो, पेरिकार्प इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। सी इन दिस डायग्राम, हियर दिस पार्ट होल इज नोन एज एम्ब्रियो। एम्ब्रियो प्रेजेंट है। आउटर मोस्ट लेयर एपिकार्प, बिल्कुल थिन सी लेयर होती है, पेपरी सी लेयर होती है इसके ऊपर, पूरी पेपरी सी थिन लेयर, इट इज नोन एज एपिकार्प।
दिस पार्ट इज नोन एज फ्लेशी पार्ट इज नोन एज, जो आपका थिकनेस में ज्यादा है, इट इज मीजोकार्प। एंड जो एम्ब्रियो के ऊपर बिल्कुल टफ सी कवरिंग है, इसको हम लोग एंडोकार्प बोल रहे हैं। एंडोकार्प आपका हार्ड कवरिंग प्रेजेंट होती है बिल्कुल सबसे अंदर की साइड, पेरिकार्प की जो इनर मोस्ट लेयर है, एंड सेंट्रल कैविटी। नेक्स्ट कंटेंट को रीड कर लेते हैं इसी फ्रूट के। इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज ड्रूप। ड्रूप क्यों बोल रहे हैं? व्हाई दीज आर नोन एज ड्रूप फ्रूट्स? सी, द फ्रूट्स इन विच एंडोकार्प इज हार्ड। जो एंडोकार्प थी, इनर मोस्ट आपकी लेयर थी पेरिकार्प की, एंडोकार्प ये कैसी है? स्टोनी है, हार्ड है। देन दैट टाइप ऑफ फ्रूट्स आर नोन एज ड्रूप फ्रूट। ड्रूप फ्रूट, मैंगो के केस में भी जो आपका सीड है वो जो एंडोकार्प है वो कैसी है? हार्ड है। कोकोनट के केस में भी जो आपका हार्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, बिल्कुल जो व्हाइट वाली लेयर के ऊपर की तरह व्हाइट के बिल्कुल अटैच होता है, वो तो आपका सॉफ्ट होता है, उसके ऊपर एक और हार्ड सा पार्ट होता है कोकोनट में भी, दिस इज नोन एज एंडोकार्प। तो ऐसे जो फ्रूट्स जिसमें कि एंडोकार्प टफ है, हार्ड है, उसको हम लोग ड्रूप फ्रूट्स बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, they develop from monocarpellary superior ovary and are one-seeded. Monocarpellary मतलब the gynoecium which consists of single carpel, single carpel होगा वहां पे, single carpel, stigma, style and ovary, and it also contains single ovule. Single ovule is present, single ovule, and it is one seeded. That means this ovule gets developed into seed after fertilization, तभी तो one seeded है क्योंकि single ovule present था। Next point, in mango the pericarp is well differentiated. जो मैंगो का छिक्कल होता है, जो पील है, it is epicarp, thin होता है। मिडिल जो फ्लैशी एडिबल पार्ट है, इट इज नोन एज मेसोकार्प, अभी हम लोगों ने डायग्राम में देखा, और जो स्टोनी पार्ट है इट इज एंडोकार्प, बिल्कुल अंदर की तरफ जो सीड्स है आपका, उसके ऊपर की जो लेयर है वो एंडोकार्प है। एंड कोकोनट विच इज ऑल्सो अ ड्रूप, क्योंकि एंडोकार्प इज अगेन हार्ड एंड टफ इन कोकोनट ऑल्सो। द मेसोकार्प इज फिब्रस, फ्लैशी नहीं होता है, फिब्रस होता है, फिब्रस टाइप का। देखिए यहाँ पे इस तरह से सबने कोकोनट देखा ना, ये फाइबर्स प्रेजेंट है, फिब्रस होता है, ये प्रेजेंट है, तो ये मेसोकार्प है। This is all about fruit. Next topic is seed. Seed. So after fertilization, the ovule gets developed into seed. Seeds, जो ovule होते हैं, ovule are placed inside ovary and attached to the wall of the ovary through placenta. So here, the ovules after fertilization, जो ovule होते हैं वही आपका seed में develop हो जाते हैं। सीड इज मेड अप ऑफ सीड कोट्स, भाई सीड की कवरिंग होगी, क्यों होगी भाई? उसके अंदर तो न्यू लाइफ है, कितना प्रोटेक्ट करके देखो, क्या कितना अच्छा नेचर ने एक पूरा कॉन्सेप्ट लेके मतलब अपने आप को फॉर्म किया है। फ्लावर आए, फ्लावर में भाई जो आपका सेपल्स एंड पेटल्स प्रेजेंट थे वो प्रोटेक्ट करते थे मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट को। आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद जो आपका फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो फीमेल पार्ट के अंदर हो रहा है, ओव्यूल के अंदर हो रहा है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन the wall of the ovary gets developed into fruit. Yeah, you can say that ovary develops into fruit, and after fertilization ovule develops into seed, and inside this seed new life is present in the form of embryo. इस seed के अंदर एक life present है, तो उस life को protection कितना बिल्कुल deep inside present है। पहले तो आपका fruit है, fruit के बाद अब इस seed का seed coat भी present है, उस seed coat के अंदर embryo present है। तो seed is made up of seed coat and embryo। डायग्राम से समझ लेते हैं, फिर बाकी कंटेंट को रीड करेंगे। Here it is a structure of a dicot seed. See, seed coat. Again, seed coat is made up of two layers, testa and tegmen. Outer one is known as testa, inner one is known as tegmen. There is a scar on the seed which is known as hilum. It is a place where the seed ovule is attached to the ovary wall. Ovule आपका जो अटैच्ड होता है ओवरी की वॉल से, सो फर्टिलाइजेशन के बाद जब ये सीड बाहर आएगा, ये जो ओव्यूल था यही तो आपका डेवलप हुआ था यहाँ से, तो यहाँ पे स्कार बन जाएगा। दिस स्कार आफ्टर इन सीड इज नोन एज हाइलम, एंड देयर इज अ ओपनिंग which is present in seed, it is known as micropyle, which is responsible for the gaseous exchange and absorption of the water also. तो सीड में सीड कोट हो गया। अब ये ओपन सीड का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है। In this seed, cotyledons are there. Now, what are cotyledons? See, seed में आपका एम्ब्रियो तो है ही, साथ ही साथ इस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए पेरेंट प्लांट ने खाना भी
पहले से ही दे के भेजा था। एम्ब्रियो के साथ क्या है, रिजर्व फॉर्म ऑफ फूड भी प्रेजेंट है, रिजर्व फॉर्म ऑफ फूड। सी, जो सीड है क्या उसके अंदर छोटी सी लीव या छोटे से रूट, छोटा सा आपका पूरा शूट वाला पार्ट प्रेजेंट है? नहीं, एम्ब्रियो प्रेजेंट है। अब ये जब सीड को सो करेंगे तो वही सीड आपका जर्मिनेट होगा और पूरा प्लांट बनेगा। तो जब वो जर्मिनेट हो रहा है तो उस जर्मिनेशन के लिए उसको न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, खाने की रिक्वायरमेंट होगी। पहले से तो लीव है नहीं, अगर लीव होती तो वो अपने आप खाना खुद बना लेता। तो पेरेंट प्लांट उसकी ग्रोथ के लिए पहले से ही कुछ रिजर्व फॉर्म ऑफ फूड दे के भेजता है कि हाँ तुम इतना खाना तो लेके जाओ कि हाँ 2 पत्तियां तो आ ही जाए। जैसे ही 2 पत्तियां आएंगी वैसे ही वो खाना बनाना स्टार्ट हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी, अपने आप प्लांट ग्रो करेगा। तो सीड में रिजर्व फॉर्म ऑफ फूड प्रेजेंट होता है along with this embryo. अब this reserve form of food is present either in the form of cotyledon or in the form of endosperm. It depends upon the type of seed. जो रिजर्व फॉर्म ऑफ फूड है या तो वो कॉटिलीडन के फॉर्म में होता है या फिर एंडोस्पर्म के फॉर्म में होता है। एंडोस्पर्म एक और स्ट्रक्चर होता है जो कि इट ऑल्सो हैज फूड, इट इज अ रिजर्व फॉर्म ऑफ अ फूड। सो एम्ब्रियो हैज 2 पार्ट्स, प्लम्यूल and radicle. Radicle is a future root, and plumule is a future shoot, the part of the plant which is above the ground. See, so हम लोगों ने यहाँ पे सीड के कौन कौन से पार्ट देखे। सीड में क्या प्रेजेंट था, आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर सीड कोट। अगेन सीड कोट देयर आर 2 parts, testa outer one, tegmen inner one. There is a scar on a seed which is known as hilum. Opening is also present which is known as micropyle, through which gaseous exchange takes place. Micropyle. Absorption of water also takes place during germination. After that, in this seed, inside the seed, embryo is there. Embryo is there along with the reserve form of food. खाना पीना न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होगी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो ड्यूरिंग जर्मिनेशन। पहले से तो इसमें लीव्स प्रेजेंट नहीं है, तो रिजर्व फॉर्म ऑफ फूड। नाउ दिस रिजर्व फॉर्म ऑफ फूड इज, इट मे बी ईदर इन द फॉर्म ऑफ कॉटिलीडन्स। ये आपके दूसरी तरह के स्ट्रक्चर है, एंडोस्पर्म आपका दूसरी तरह के स्ट्रक्चर है। तो 2 अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर देख रहे थे तो नाम हमने डिफरेंट दे दिया, लेकिन इनका काम दोनों का सेम ही है, रिजर्व फॉर्म ऑफ फूड है दोनों ही, कॉटिलीडन्स या फिर इन द फॉर्म ऑफ एंडोस्पर्म। Now read the content of NCERT. Embryo. The embryo is made up of radicle. See, अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ा embryo. This embryo consists of radicle, which forms future root, and plumule, which form future shoot along with the reserve form of food के साथ। तो रेडिकल प्रेजेंट है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है, एक्सिस मतलब जहां से ये आपका पूरा, ये दोनों कॉटिलीडन आपके अटैच्ड है एम्ब्रियो से, कॉटिलीडन अटैच्ड है, अभी 2 देखे थे। तो ऊपर वाला पार्ट प्लम्यूल, नीचे वाला पार्ट रेडिकल, और ये जो एक्सिस है इसको हम लोग एम्ब्रियोनल एक्सिस बोल रहे हैं। In some seeds there is only one cotyledon, like in case of wheat and maize. These type of seeds are known as monocot seeds. In some seeds there are 2 cotyledons, like in case of gram and pea. These seeds are known as dicotyledonous seeds, जिसमें कि आपका जो आपका सीड है वो इस तरह से 2 पार्ट में ओपन हो जाता है इजिली। पी वाला सीड आपका ओपन हो जाता है, ग्राम का सीड ओपन हो जाता है, बीन का सीड ओपन हो जाता है क्या, लेकिन व्हीट का सीड ओपन हो पाता है या फिर भुट्टे का, मेज का सीड ओपन हो पाता है? नहीं। So here in case of wheat and maize there is only single cotyledon, so these are monocot seeds, and in case of gram and pea there are 2 cotyledons, so they are dicotyledonous seed. तो cotyledons के basis में आपके 2 टाइप के seeds हैं। So let's discuss the types of seeds. First, dicotyledonous seeds. The seeds which contain 2 cotyledons are known as dicot seeds or dicotyledonous seeds. What are cotyledons? Cotyledons are the reserve form of food which plays a role during seed germination. Seed germination के टाइम पे जब एम्ब्रियो डेवलप होता है उसको न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं? कोटिलीडन से मिलते हैं, क्योंकि दीज आर रिजर्व फॉर्म ऑफ फूड। सी इन दिस डायग्राम अगेन, हियर इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ ग्राम सीड। सबने ग्राम सीड को देखा ही है, 2 कोटिलीडन्स आर देयर, 1 and 2, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज dicot seed. Here it is embryo,
The upper part of embryo is known as plumule, which develops into shoot up, and here it is the lower part. It is known as radicle, which develops into root. Again, this seed has seed coat. Seed coat is present. Seed coat has two layers. The outer one is known as testa, and inner one is known as stegma. सबने ग्राम का सीड देखा ही है. जो सीड कोट होता है आफ्टर बॉइलिंग ग्राम सीड, जो आपका सीड कोट होता है वो रिमूव हो जाता है इजिली. जो आउटर वाला लेयर होती है वो आपकी कैसी होती है, डार्क इन कलर होती है, और अंदर की साइड से वही सीड कोट कैसा होता है, लाइट कलर का होता है. दैट मीन्स वो दोनों लेयर आपस में फ्यूज है. बाहर वाली जो लेयर है उसको टेस्टा बोल रहे हैं और इनर वन इज नोन एज स्टेगमेंट. देयर इज अ स्कार ऑन द सीड, एक छोटा सा धब्बा सा होता है इस सीड पे, विच इज नोन एज हाइलम. हाइलम इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल टू द ओवरी. जब ये आपका जो सीड है ओव्यूल के फॉर्म में होता है बिफोर फर्टिलाइजेशन, तो इस हाइलम वाले रीजन पे ही ये आपका जो ओव्यूल था, जब आपका बिफोर फर्टिलाइजेशन था, ये सीड नहीं था, ओव्यूल बोलेंगे तब, तो वो जो रीजन है उसी को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, हाइलम. तो जो स्कार आपका रह गया जब ये सीड बाहर आ गया ओवरी से या फ्रूट से, तो वो स्कार जहाँ से ये सीड अटैच था वो हाइलम बोलते हैं उसको. Then again there is a opening which is responsible for the exchange of gases, absorption of water during seed germination. This opening is known as micropyle. Read कर लेते हैं यहाँ पे points को. The outermost covering of a seed is known as seed coat. Seed coat में भी two layers हैं. Outer is known as testa, inner one is known as stegmen. हाइलम क्या था, एक स्कार था सीड कोट के ऊपर, एक छोटा सा धब्बा था, थ्रू विच द डेवलपिंग सीड वर अटैच टू द फ्रूट. फ्रूट से जहां से अटैच था डेवलपिंग सीड, वो जब सीड वहां से रिमूव किया तो वहां पे एक स्कार बन गया. अबव द हाइलम, हाइलम के ऊपर एक छोटा सा पोर था. दैट पोर इज नोन एज माइक्रोपाइल, रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैसियस एक्सचेंज एंड एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन. विद इन द सीड कोट के अंदर ही एम्ब्रियो प्रेजेंट था, कंसिस्टिंग ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू कॉटिलिडन्स. ये थे आपके एम्ब्रियोनल एक्सिस, अगेन हाईलाइट कर देते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस and two cotyledons, 1 and 2. Next, the cotyledons are often fleshy and full of reserve food material. ज्यादातर जो ये cotyledons होते हैं फ्लैशी होते हैं, ये पूरे cotyledons, और इसमें क्या होता है, रिजर्व फॉर्म ऑफ फूड होता है. तभी तो ये एम्ब्रियो डेवलप होगा, जो खाना पीना उसको डेवलपमेंट के लिए चाहिए वो कहाँ से मिलता है, cotyledon से मिलता है. नेक्स्ट पॉइंट, द टू एंड्स ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस. ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस के दो एंड हैं, वन एंड इज प्लम्यूल एंड अनदर वन इज रेडिकल. रूट एंड शूट का फॉर्मेशन होता है दोनों से. नेक्स्ट, एंडोस्पर्मिक सीड एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड. नाउ व्हाट इज एंडोस्पर्म? ये एंडोस्पर्म होता क्या है? एंडोस्पर्म इज आल्सो अ रिजर्व फॉर्म ऑफ फूड. रिजर्व फॉर्म ऑफ फूड. जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, जब उनमें फर्टिलाइजेशन होता है तो वहां पे सेम टाइम पे दो जगह फर्टिलाइजेशन होता है. दो मेल गैमीट पहुंचते हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर. एम्ब्रियो सैक कहाँ पे था? ओव्यूल के अंदर, and ovule is placed inside ovary. So it is ovary. Inside this ovary, ovule is there, and inside this ovule, embryo sac is present. इस embryo sac में सेम टाइम पे दो जगह फर्टिलाइजेशन होता है. दो मेल गैमीट प्रेजेंट होते हैं पॉलन के अंदर, पॉलन ग्रेन के अंदर. सो वन मेल गैमीट गेट फर्टिलाइज्ड विद द सेंट्रल सेल. यहाँ पे सेंट्रल सेल प्रेजेंट होती है जिसमें दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, और एक मेल गैमीट का न्यूक्लियस आता है, जिसकी वजह से जो ये स्ट्रक्चर बनता है वो तीन न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है. तीन न्यूक्लियस यहाँ पे फ्यूज हो जाते हैं आपस में. इसको बोलते हैं हम लोग ट्रिपल फ्यूजन. दिस स्ट्रक्चर्स गेट डेवलप इनटू एंडोस्पर्म फर्स्ट. इन सम केसेस दिस एंडोस्पर्म इज डेवलप्ड इन कॉटिलिडन्स. कुछ केसेस में यही एंडोस्पर्म आपका दूसरे तरह के स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, कॉटिलिडन्स जिनको बोलते हैं हम. लेकिन इन सम केसेस एंडोस्पर्म रिमेन एज सच. कुछ केसेस में एंडोस्पर्म की ही तरह रहता है. तो द सीड्स इन विच एंडोस्पर्म रिमेन एज सच, इट इज नोन एज एंडोस्पर्मिक सीड. जिसमें एंडोस्पर्म के फॉर्म में ही रहता है, उनको हम लोग एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं. जिसमें एंडोस्पर्म कॉटिलिडन्स में चेंज हो जाता है. कॉटिलिडन्स में डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर है, बस स्ट्रक्चर में आपका डिफरेंस है, बाकी इनका काम तो सेम ही है. तो उनको हम लोग नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं. रीड कर लेते हैं पॉइंट को. In some seeds such as castor, endosperm formed as a result of double fertilization. Double fertilization means embryo sac, जो यहाँ पे आपका ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक है, यहाँ पे दो जगह सेम टाइम पे फर्टिलाइजेशन होता है. एक मेल गैमीट को फर्टिलाइज करता है एक सेल से, जिससे कि आपका जाइगोट बनता है, और जाइगोट फर्दर वो एम्ब्रियो में डेवलप होता है. एक मेल गैमीट
तो एग सेल से फर्टिलाइज करेगा जिससे जाइगोट बनेगा और जाइगोट फर्दर डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो में। एंड जो सेकेंड मेल गैमेट होता है वो सेंट्रल सेल से फर्टिलाइज करता है और सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस पहले से होते हैं और एक मेल गैमेट का न्यूक्लियस, वहां पे जो फर्टिलाइजेशन होगा वहां पे जो न्यूक्लियस फॉर्म होगा वो 3n प्लॉइडी का होगा। 3n मतलब वहां पे 3 न्यूक्लियस फ्यूज हुए थे, उससे जो फर्दर स्ट्रक्चर डेवलप होता है उसको एंडोस्पर्म बोलते हैं। ठीक, तो रिजल्ट है एंडोस्पर्मिक सीड जिसका डबल फर्टिलाइजेशन का फूड इज स्टोरिंग टिश्यू होता है एंडोस्पर्म। इन प्लांट सच एज बीन, ग्राम, पी, अभी जिसका स्ट्रक्चर देखा था बीन का, पी में जो एंडोस्पर्म था वो किसके फॉर्म में चेंज हो गया था? कॉटिलीडन के फॉर्म में। एंडोस्पर्म अब रहा ही नहीं, रिजर्व फॉर्म ऑफ फूड है लेकिन कॉटिलीडन के फॉर्म में है। ऐसे सीड्स को हम लोग नॉन एंडोस्पर्मस सीड बोलते हैं। सी इन दिस डायग्राम, एंडोस्पर्मिक सीड है, ये डाइकॉट सीड है, कैस्टर सीड। यहाँ पे एंडोस्पर्म को देखिएगा, ये पूरा एंडोस्पर्म है, ये डेवलप हो गया फूड, रिजर्व फॉर्म ऑफ फूड में, और जिसमें कॉटिलीडन्स है वो रिड्यूस्ड है। इसमें जो ये कॉटिलीडन्स प्रेजेंट है वो रिड्यूस प्रेजेंट है, और 2 है लेकिन कैसे हैं? रिड्यूस्ड है। और क्योंकि एंडोस्पर्म प्रेजेंट है सो इट इज नोन एज एंडोस्पर्मिक सीड। एंड जो अभी हम लोगों ने डायग्राम ग्राम का पढ़ा था, यहाँ पे एंडोस्पर्म नहीं थे, कॉटिलीडन्स थे। एंडोस्पर्म आपका पूरी तरह से चेंज हो गया था कॉटिलीडन्स के फॉर्म में, सो इनको हम लोग नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ अ मोनोकॉटिलीडनस सीड। द सीड विच कंटेन सिंगल कॉटिलीडन इज नोन एज मोनोकॉटिलीडनस सीड। अगेन, monocotyledonous seeds are endospermic seeds in which endosperm remains as such, but in some, as in orchids, non-endospermic seeds are also there. Non-endospermic means the endosperm gets converted into cotyledon. See in this diagram, here it is the structure of a maize seed. Maize, reserve form of food in this monocotyledonous seed is endosperm. ये पूरे में एंडोस्पर्म भरा हुआ है, ये पूरा एंडोस्पर्म है। दिस एंडोस्पर्म इज एनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन में एनक्लोज्ड है या लेयर के अंदर एनक्लोज्ड है। दिस लेयर इज नोन एज एल्यूरोन लेयर एंड इट इज रिच इन प्रोटीन। इट इज रिच इन प्रोटीन, प्रोटीन में रिच होती है। और ये एल्यूरोन लेयर एंडोस्पर्म से ही डेवलप हुई होती है। जब एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो रहा होता है उसी टिश्यू से एल्यूरोन लेयर बनी हुई है। सो एंडोस्पर्म में 3 न्यूक्लियस फ्यूज हुए थे तो उसकी प्लॉइडी कितनी थी? 3n थी। सो एल्यूरोन लेयर भी क्योंकि इसी टिश्यू से बनी हुई है तो इसकी भी जो प्लॉइडी है वो 3n है। प्लॉइडी मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए कंटेंट है वो ट्रिपल सेट में है। एम्ब्रियो पार्ट नीचे की साइड प्रेजेंट है, लोअर पार्ट। सबने मेज का सीड देखा है ना, ऊपर येलो सा पार्ट दिखता है, फिर नीचे व्हाइटिश पार्ट होता है, वहीं पे व्हाइटिश पार्ट में ही आपका एम्ब्रियो प्रेजेंट है। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गई, एम्ब्रियोनल एक्सिस। The upper part which forms future shoot, जिसके पास future shoot होती है, it is known as plumule, and future जो root को form करता है it is radicle. Again plumule और radicle, क्योंकि ये young tissue है, delicate सा tissue है, अभी तो इससे आगे पूरी generation आएगी, और young tissue delicate होता है, जैसे बेबी होते हैं ना छोटे से, वो delicate होते हैं, young होते हैं, इसलिए delicate से होते हैं, तो इनकी भी प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, केयर बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, तो प्लांट में इसकी कवरिंग प्रेजेंट है। प्लूम्यूल की कवरिंग को हम लोग बोलते हैं कोलियोप्टाइड and the covering of radicle is known as coleorhiza. तो R से radicle और coleorhiza में R प्रेजेंट है, P से plumule और coleoptile में P प्रेजेंट है, तो इस तरह से आप याद रखिएगा। And in this maize seed there is a reduced cotyledon, क्योंकि cotyledon तो है ही नहीं, यहाँ पे एंडोस्पर्म अपने ही एंडोस्पर्म के फॉर्म में ही है, चेंज हुआ ही नहीं है cotyledon के फॉर्म में, तो रिड्यूस्ड फॉर्म में cotyledon प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्यूटेलम। मोनोकॉट के केस में हम लोग cotyledon को स्क्यूटेलम बोलते हैं। इट इज रिड्यूस्ड, रिड्यूस मतलब कम है, बिल्कुल जरा सा ना के बराबर है। फंक्शन जो मेन काम किसके पास प्रेजेंट है? मेन फूड एंडोस्पर्म के पास, रिड्यूस्ड कॉटिलीडन। ये देखिएगा आपका साइड में यहाँ पे डायग्राम दिया गया है मेज सीड का। जो येलो वाला पार्ट होता है वो एंडोस्पर्म होता है, जो नीचे व्हाइटिश पार्ट दिखता है वही तो एम्ब्रियो है, और हियर इट इज एम्ब्रियोनल एक्सिस। अपर पार्ट प्लूम्यूल, लोअर पार्ट रेडिकल। सी हियर, in the seeds of cereals such as maize, the seed coat is membranous, पतला सा होता है seed coat, membranous होता है, membranous मतलब पतली सी शीट, thin sheet, generally fused with the fruit wall, और ये fruit की wall से ही fused रहता है। जो आपका पूरा सीड, इसमें हम लोग अपना एडिबल पार्ट है, सीड को ही खा लेते हैं, तो फ्रूट की वॉल इसी से फ्यूज रहती है, ज्यादा डेवलप नहीं होती, फ्लैशी नहीं होती है। एंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर फूड। एंडोस्पर्म यहाँ पे देखिए बल्की था, बहुत सारा था एंडोस्पर्म पूरे में, ये पूरा बल्की था, इसी के अंदर फूड स्टोर था। नेक्स्ट पॉइंट, द
The outer covering of endosperm separates the embryo by a proteinaceous layer called alluron layer. एंडोस्पर्म को कौन सेपरेट कर रहा है यहाँ पे? एल्यूरोन लेयर. सी द एल्यूरोन लेयर वेयर इट इज प्रेजेंट. एम्ब्रियो से एंडोस्पर्म को एल्यूरोन लेयर सेपरेट कर रही है. एम्ब्रियो नीचे वाला पार्ट है पूरा, ये पूरा पार्ट, ठीक, और अपर पार्ट में क्या फिल है पूरे में? एंडोस्पर्म. तो इसको सेपरेट करने का काम कौन कर रहा है? एल्यूरोन लेयर. ये एल्यूरोन लेयर, देयर इट इज एल्यूरोन लेयर. ये सेपरेट कर रही है एल्यूरोन लेयर. कवरिंग है पूरी तरह से 3D स्ट्रक्चर में, बैग लाइक स्ट्रक्चर होगा. नेक्स्ट, एम्ब्रियो इज स्मॉल. एम्ब्रियो स्मॉल है, नीचे की साइड छोटा सा था. सिचुएटेड इन अ ग्रूव एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म. एक छोटे से एक ग्रूव में, ये छोटा सा दिख रहा है ग्रूव, इस तरह ग्रूव धसे हुए से रीजन में प्लेस है एम्ब्रियो छोटी से साइड में. इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज शीट शेप्ड कॉटिलीडन्स नोन एज स्क्यूटेलम. रिड्यूस्ड कॉटिलीडन प्रेजेंट होता है. And a short axis with a plumule and a radicle. Upper part is plumule, lower part is radicle. Plumule and radicle enclosed inside the coleoptile and coleorhiza respectively. Plumule की covering is coleoptile and radicle की covering is known as coleorhiza. Let's discuss some questions related to today's topic. Here is the question number 1. Coconut fruit is a. Coconut fruit क्या था? Drupe था, क्योंकि endocarp hard था, stony था. Next question. कॉटिलीडन्स ऑफ मेज ग्रेन इज कॉल्ड. अभी हम लोग ने पढ़ा कॉटिलीडन्स मेज के ग्रेन में हम लोग उसको क्या बोल रहे थे? स्क्यूटेलम. रिड्यूस फॉर्म में था. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट. नाउ व्हाट आर पार्थेनोकार्पिक फ्रूट? द फ्रूट्स विच डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन. देयर इज नॉट अ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट. ओवरी स्टार्ट डेवलप इनटू फ्रूट. ऐसे फ्रूट्स को हम लोग पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स बोलते हैं, जिसमें कि फ्रूट डेवलप हो जा रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट. एग्जांपल इज बनाना. और ये स्ट्राइल फ्रूट होते हैं, इससे आगे जनरेशन नहीं आ सकती क्योंकि इनमें सीड्स नहीं होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एल्यूरोन लेयर. अभी देखा हम लोगों ने मोनोकॉट सीड में प्रेजेंट था, मेज के सीड में प्रेजेंट था, एंडोस्पर्म को सेपरेट कर रहा था एम्ब्रियो वाले रीजन से. तो एल्यूरोन लेयर इन मेज इज स्पेशली रिच इन, किसकी बनी हुई होती है? प्रोटीन की. प्रोटीन में रिच होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, what would be the number of chromosome of aileron cells of a plant with 42 chromosome in root tip cells. जो रूट की सेल्स हैं, दैट मीन्स ये गैमेट वाली सेल्स हैं कि सोमैटिक सेल्स हैं? दीज आर सोमैटिक सेल्स. सिर्फ आपकी गैमेट वाली सेल में क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है. तो सोमैटिक सेल में आपका 2n के सेट में जो क्रोमोसोम होते हैं, 2n मतलब पेयर में प्रेजेंट होते हैं, तो 42 इसमें प्रेजेंट है. लेकिन एल्यूरोन जो सेल्स थी वो किससे डेवलप हुई थी? स्टार्टिंग में वो सेल्स जो एंडोस्पर्म को फॉर्म कर रही थी उन्हीं से ही तो डेवलप हुई थी. और एंडोस्पर्म को फॉर्म करने वाली सेल्स की प्लॉइडी कितनी थी? 3 थी, क्योंकि वहां पे 3 न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं. एक मेल गैमेट और 2 न्यूक्लियस सेंट्रल सेल में पहले से प्रेजेंट होते हैं. और ये स्ट्रक्चर एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है, विच इज प्रेजेंट इनसाइड द ओव्यूल. ये डिटेल में आप लोग क्लास 12 के कंटेंट में रीड करोगे. सो एंडोस्पर्म वाले उससे सेल से फॉर्म हुई थी, तो इनकी प्लॉइडी भी क्या होगी? 3n होगी. तो 42 का हाफ क्या हो गया आपका? 21. 21 का 3 टाइम्स 63. तो इनकी प्लॉइडी क्या होगी? नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने प्रेजेंट होंगे? 63 प्रेजेंट होंगे. दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर.